Hello everyone. We'll continue with solutions and aldehydes and ketone nomenclature we were doing. We did with eighth nomenclature. Now we have to do ninth one. Now what is name of this compound? Benzene ring with aldehyde group is called benzaldehyde. Now when there are two benzaldehyde, how will you name? What is common name of this particular compound? Yeah, Om, very good. Anyone else? Okay. Benzene ring with only aldehyde group is called benzaldehyde. When benzene ring has two aldehyde group at ortho position, they are called phthalaldehyde. Okay, and if it is at meta position, then they are called as isophthalaldehyde. And if they are on para position, we call them as terphthalaldehyde. Is it clear? So when they are at ortho, phthalaldehyde, here P is silent. Phthalaldehyde we have to pronounce. PH silent. If they are at meta position, then we call isophthalaldehyde. And if they are on para position, we call terphthalaldehyde. Okay, when benzene ring has two aldehyde group, but this aldehyde group, as they are outside the benzene ring, they are called carbaldehyde. Now you have to give numbering 1, 2, benzene dicarbaldehyde. Like benzaldehyde can also be called as benzene carbaldehyde. And here there are two carbaldehyde group, and therefore we call it as benzene 1, 2 dicarbaldehyde. Okay, can copy down this structure, ninth one, and then we'll do nomenclature for the 10th one. Now see the 10th one. Okay, here there is aldehyde group and there is OH group. Obviously priority goes to aldehyde. Okay, but the common name, when we talk about common name, we have done this in preparations, chemical properties of phenol. If you remember, this compound was obtained. Correct, Om. Okay, yeah, Husna, correct. Yeah, this is called salicyl aldehyde, or we can also call this as orthohydroxy benzaldehyde. We can call it as orthohydroxy benzaldehyde is salicyl aldehyde. Okay, now in IUPAC, aldehyde group is parent and OH group is substituent, so we call it as 2-hydroxy benzaldehyde. Very good, Om. 2-hydroxy benzaldehyde. Write and practice. You all have to write down all this. Copy up till 10th, then we'll do 11th one. So this is phthalaldehyde or benzene 1, 2 dicarbaldehyde. This is salicyl aldehyde. We can call it also as orthohydroxy benzaldehyde, and in IUPAC name it is 2-hydroxy benzaldehyde. Benzaldehyde can be taken as common also in IUPAC also. Okay. Yeah, Rishabh, any doubt? Now this one. See, now if there were three OH group, 1, 2, and 3, if there were three OH group,
then it is called as 3 OH group is called as glycerol. Now instead of one OH group, yeah, Rishabh, correct. We can call it as orthohydroxybenzaldehyde. Salicylaldehyde, I told that we can call it as orthohydroxybenzaldehyde. Yeah, true it is. Okay. Now see, here there are three carbon with three OH group is called glycerol. Now instead of one OH is been replaced by aldehydic group, and therefore it is called as glyceraldehyde. Yeah, correct, Om. So the compound name, the common name is glyceraldehyde, as it is a derivative of, you can say, glycerol. 3 OH group on 3 separate carbon. It is called as glycerol. Propane 1, 2, 3 triol is called glycerol. Now instead of one OH group, we have here aldehydic group, and therefore it is called as glyceraldehyde. Yeah, correct, Om. Now see, if you number IUPAC name, aldehyde will be taken as parent. So this 2 and 3 carbon, we have 2 OH group. So it becomes, if there were ये OH group नहीं होता, तो इसका नाम होता propanal. Now as there are 2 OH group on second and third carbon, it is called 2,3 dihydroxypropanal. 2,3 dihydroxypropanal. Okay. So common name is glyceraldehyde and 2,3 dihydroxypropanal. Priority goes to aldehydic group. Now this name, this compound is called, common name is called vanillin. Okay, it is commonly called as vanillin. Now your aldehyde is the parent compound. OCH3 is ether, that is methoxy, and OH is hydroxy. So numbering will start from aldehyde. 1, 2, 3, 4. Like that will go clockwise. So it is alphabetically 4 hydroxy 3 methoxy benzaldehyde, or you can write benzene carbaldehyde. Okay, 4 hydroxy 3 methoxy benzaldehyde, or benzaldehyde can also be written as benzene carbaldehyde. So you can add benzene carbaldehyde to it. Keep writing, copy down these structures. Everybody followed up till 12th? Any doubt you can ask. Okay. Now see, benzene ring with aldehyde is called benzaldehyde, and benzene ring with CH3 is called toluene. Now here it is a mixture of toluene and aldehyde both, and they are at para position with each other. So common name is para-tolualdehyde. Toluene and aldehyde together. Okay, so it is called para-tolualdehyde. Yeah. Now your priority goes to aldehyde. So on 4th carbon there is methyl group. So it becomes 4-methyl benzaldehyde, or I can write 4-methyl benzene carbaldehyde. बेंजल्डिहाइड को हम बेंजीन कार्बल्डिहाइड या बेंजीनाल भी बुला सकते हैं. We call it as benzenal also. Okay. I hope everybody is writing all this. Okay.
We'll go for the next compound. Now we'll do nomenclature of ketones. Now see ketone, यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है, दोनों तरफ मिथाइल है और बीच में CO ग्रुप है, that is ketonic group, and therefore name of this compound becomes, yeah Rishabh, correct, dimethyl ketone or acetone. Now acetone is a special name given to it, so to remember, acetone is nothing but a nail polish remover. Okay, so it is also called dimethyl ketone or acetone. In IUPAC, you have to remove E and replace it with ONE. So here there are total 3 carbon, propane. Umema no 2, only propanone, because propanone has no other possibility. I cannot have propane 1 on, I cannot have propane 3 on, and therefore I write only propanone. If you write 2 on, you get wrong. Is it clear? Now see, here there are total 4 carbon. Okay, and one side there is methyl and one side there is ethyl, and here there is a ketone. तो एक तरफ ethyl है, एक तरफ methyl है. Alphabetically E comes first. So ethyl methyl ketone. Yeah, correct, Umema. Now what will be IUPAC name for this? What will be IUPAC name for ethyl methyl ketone? Yeah, correct Zain, correct Amruta, correct Rishabh. Butanone. Now don't write 2 on. 2 on is wrong, because again butane has no possibility. Butane cannot be 1 on or 3 on, so therefore we don't write. If there are substituent like benzene ring or any other alkyl group, then we mention it. Otherwise not required. Now, what is common name for this? देखो यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पर भी इथाइल है, दोनों तरफ इथाइल है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? या जैन करेक्ट, या ऋषभ करेक्ट, बशर, और कौन कौन है? बशर है, आयशा, बशर, महविश, राज, साद, यश. आंसर्स नहीं है बिल्कुल तुम्हारी तरफ से. या करेक्ट, अमृता करेक्ट, जीशान मलिक करेक्ट, जैन करेक्ट. ओके, डाई इथाइल कीटोन. अभी लंबी चेन 5 कार्बन की है, तो यहाँ पे नंबरिंग देना पड़ेगा. इधर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट और लेफ्ट, दोनों तरफ से कीटोन को नंबरिंग 3 ही आएगी. कीटोन शुड गेट लीस्ट नंबरिंग, सो इधर साइड लीस्ट नंबरिंग 3 आता है, एंड देयरफॉर द नेम बिकम्स, हाँ करेक्ट साद, पेंटेन 3 on. ओके, यश करेक्ट, पेंटेन 3 on. पेंटेन का ई निकाल के ONE लगाना है, पेंटेन 3 on. अभी इसका कॉमन नेम बताना है. देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है एक तरफ और दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप है. So write down name and tell me what will be the common name for this. ऋषभ वेरी गुड. आयशा, आयशा प्रोफाइल में कौन सा प्रोफाइल है लिखना है. हुस्ना करेक्ट, ओम करेक्ट, या राज करेक्ट, जीशान मलिक, साथ बोता करेक्ट. ओके, मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन. अभी यहाँ पे नंबरिंग लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कर सकते हैं, पर हम लेफ्ट से ही करेंगे
क्योंकि कीटोन को कम से कम नंबरिंग आनी चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन टू ओन। या राज करेक्ट? पेंटेन टू ओन। या जीशान मलिक करेक्ट? यश करेक्ट? चलो इसका पहले कॉमन नेम बताओ, देखते आता है कि नहीं। कॉमन नेम बताना है। हाँ हाँ, ऋषभ करेक्ट, वेरी गुड। पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। या उनको पोजिशन आइसोमर्स नहीं बुलाएंगे, उनको मेटामर्स बुलाएंगे। ओके, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है दोनों तरफ, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मेटामर्स ऑफ ईच अदर। चलो ट्राई आउट फिफ्थ वन। देखो पहले कौन सा ग्रुप है इस तरफ। ये क्या है? 2 कार्बन, और यहाँ पे है 3 कार्बन। ओके, हाँ राज करेक्ट। पर उसमें ना अभी ब्रोमो की पोजीशन बतानी है। अभी कॉमन नॉमेनक्लेचर में कार्बोनिल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को बुलाते हैं अल्फा। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। ओके, या साद। साद एक, हाँ ब्रोमो इथाइल, पर यहाँ पे आ जाएगा अल्फा ब्रोमो इथाइल, क्योंकि ब्रोमीन कौन से कार्बन पे वो बताना जरूरी है। एंड देयरफॉर द नेम बिकम्स अल्फा ब्रोमो इथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। अगर ब्रोमीन नहीं होता तो इसका नाम होता इथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। पर क्योंकि यहाँ पे ना कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बुलाते हैं, तो वो उसकी पोजीशन ब्रोमीन कौन से कार्बन पे है, तो कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाले कार्बन को अल्फा, फिर बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे जाते हैं। सो इट विल बिकम अल्फा ब्रोमो इथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। ओके, हाँ आईपीसी नेम ओम करेक्ट। हाँ अभी देखो कीटोन के लिए वेरी गुड, ऋषभ करेक्ट। हाँ 2 ब्रोमो पहले आएगा ऋषभ। अभी नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट से जाएंगे तो कीटोन को 3rd नंबरिंग आ रही है, और राइट से जाएंगे तो 4th नंबरिंग आ रही है। तो देयरफॉर विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ब्रोमीन नहीं होता तो इसका नाम हो जाता है हेक्सेन 3-on, पर सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन है और इसलिए इसका नाम हो जाता है 2 ब्रोमो हेक्सेन 3-on। यश, ऋषभ, बोथ आर करेक्ट। ओके, जेन करेक्ट, ओम करेक्ट। 2 ब्रोमो हेक्सेन 3-on। चलो यहां तक कॉपी हुआ। नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नॉमेनक्लेचर अच्छा नहीं हुआ तो रिएक्शन समझ ही नहीं आएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग in nomenclature, then your organic chemistry becomes automatically very strong. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक ही नॉमेनक्लेचर है। अगर नॉमेनक्लेचर अच्छा आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगा, और जिनको नॉमेनक्लेचर नहीं आता है उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ लगेगा। एंड आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, यू कैन नॉट रीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस। सो कीप ऑन राइटिंग एवरी टाइम। रिएक्शंस, नॉमेनक्लेचर सब कुछ लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। हाँ नेक्स्ट वन। चलो अभी बताओ ये कौन सा कंपाउंड है। इसका कॉमन नेम थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होगा, थोड़ा अलग है। या ओम करेक्ट। ओम ने लगता है एक्स्ट्रा पढ़ाई की है आज बहुत।
ओके अभी देखो ये कैसा है मालूम है, यहाँ पर एक एसीटोन, ये एसीटोन मॉलिक्यूल था सी डबल बॉन्ड ओ, और ये दूसरा एसीटोन है, मतलब दो एसीटोन मॉलिक्यूल में से हमने वाटर निकाल दिया. So when you remove or condense two acetone molecule, we get a compound called मेसिटाइल ऑक्साइड. अभी ऐसे ही मैंने समझाया था, दो एसिटल्डिहाइड, अगर दो एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं, तो क्रोटोन अल्डिहाइड बनता है. और अगर दो एसीटोन मॉलिक्यूल को कंडेंस करो, देखो एक ये एसीटोन है और आगे वाला दूसरा एसीटोन है, इसका O और इसके दो हाइड्रोजन, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो कंपाउंड दो एसीटोन को कंडेंस करने के बाद मिलता है, उसको हम मेसिटाइल ऑक्साइड बुलाते हैं. सो टू रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी नंबरिंग राइट से करेंगे क्योंकि कीटोन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए. फोर्थ कार्बन पे मिथाइल है और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाता है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन. 3 इन का मतलब डबल बॉन्ड एंड 2 ओन का मतलब कीटोन. So 4 methyl pent 3 in 2 on. और कॉमन नेम याद रखना है इसका मेसिटाइल ऑक्साइड, बाद में रिएक्शंस में भी आएगा वापस से. सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. चलो देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, अभी बेंजीन रिंग विथ CH2 और यहाँ पे दो कार्बन. सो व्हाट विल बी द कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड? या ऋषभ करेक्ट, ओम करेक्ट. योर बेंजीन रिंग विथ CH2 इज कॉल्ड बेंजाइल, और यहाँ पे दो कार्बन को हम बुलाते हैं इथाइल. अभी अल्फाबेटिकली बेंजाइल पहले आएगा, सो बेंजाइल इथाइल कीटोन. अभी नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे तो कीटोन को सेकेंड नंबरिंग आएगी, और राइट से करेंगे तो थर्ड नंबरिंग आएगी. तो हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4. अभी फर्स्ट कार्बन पे बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट है, जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो उसको हम बुलाते हैं फिनाइल. सो इट विल बी 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ओन. ओके 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ओन. यहाँ तक नॉमेनक्लेचर समझा? एनी डिफिकल्टी ऑल कैन आस्क. ओके हाँ ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस करेंगे, अल्डिहाइड और कीटोन के साथ में करेंगे. सो हियर देयर आर 3 3 6 and 3 9 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस. नाउ डोंट राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, सिर्फ खाली हेडिंग दो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. और पहला मेथड है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं अल्कोहल में. अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो अल्डिहाइड, एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन गिव्स यू कीटोन. ओके so oxidation is carried out in presence of PCC and PDC. अगर हमने PCC और PDC नहीं यूज किया तो सीधा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके सो गिव हेडिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और ये खाली जनरल रिएक्शन ये वाला कॉपी करो और ये लिखो PCC एंड PDC. जस्ट राइट इट डाउन फुल फॉर्म. PCC का फुल फॉर्म है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, और PDC is pyridinium dichromate. And just copy down this general reaction.
ये ड्रिंक एंड ड्राई में भी काम आता है, मैंने बोला था तुमको टेस्ट में। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज कलर, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट करता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एसिड्स में। ओके, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज से ग्रीन हो गया और तुम्हारी ब्रेथ के अंदर अल्कोहल है, तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्डिहाइड में या एसिड्स में, और उससे पता चलता है, उसे डिटेक्ट कर सकते हैं whether you have consumed alcohol or no. ओके, अभी इसमें रिएक्शन करेंगे। ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल को नेसेंट ऑक्सीजन, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, K2Cr2O7 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एरो पे पीसीसी या पीडीसी भी लिखना है। ओके, तो यहाँ पे से 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे। 2 हाइड्रोजन विल गो विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, और ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, and along with that we'll get water molecule. Okay, so primary alcohol on oxidation gives you aldehyde. ये मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन खुद से कंप्लीट करना है। एक एग्जांपल मैंने दिया, अभी एक एग्जांपल तुम लोग लिखो। दोनों नाम लिखना है। इथेनॉल का कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल, और एसिड अल्डिहाइड का आईयूपीसी नेम है इथेनॉल। अभी ये सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड एग्जांपल जो मैंने दिया है, उसमें मिथाइल अल्कोहल मीथेनॉल, या मिथाइल अल्कोहल मीथेनॉल, या प्रोडक्ट मीथेनॉल मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड। वेरी गुड। ओके, ऑन ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएंगे, सो विल गेट फॉर्मल्डिहाइड और मीथेनॉल। राइट कॉमन एंड आईयूपीसी बोथ द नेम्स। सिर्फ एक नाम लिखोगे तो समझ नहीं आएगा, दोनों नाम लिखो, कॉमन नेम भी और आईयूपीसी नेम भी। Okay. Yeah. Shada, once I complete this reaction, then I'll show you. हाँ, देखो अभी ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका नाम है सेक प्रोपाइल, सेक और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेनटुऑल। अभी सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड NH2SO4। अभी कीटोन जब बनता है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल के लिए पीसीसी और पीडीसी नहीं लिखना है, प्राइमरी अल्कोहल में लिखना है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल कंट्रोल ऑक्सीडेशन होना चाहिए, अदरवाइज इट विल डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड टू एसिड। पर सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन पे रुक जाता है और उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने पे ही एसिड मिलता है। सो हियर यू नीड नॉट राइट पीसीसी एंड पीडीसी फॉर सेकेंडरी अल्कोहल। अभी देखो ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ये एक कार्बन वाला और एक ये ऑक्सीजन वाला, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएंगे एंड विल गेट अ कंपाउंड आउट योर कीटोन। अभी इसके 3 नाम लिखने हैं,
acetone, dimethyl ketone, propanone. And along with this, we get water molecule. Primary alcohol on oxidation gives you aldehyde. Secondary alcohol on oxidation gives you ketone. टर्शरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा? चलो बताओ, व्हाट विल हैपन इफ आई ऑक्सीडाइज टर्शरी अल्कोहल? Then no reaction is saying. What about others? We'll get alkenes. Yeah, Aisha, correct. Actually, tertiary alcohol do not undergo oxidation. In presence of sulfuric acid, they undergo dehydration. So you all are correct. The tertiary alcohol do not undergo oxidation, they undergo dehydration, and they'll give you alkenes. Alkenes on oxidation gives you ketone if it is a branched alkene. अगर स्ट्रेट चेन अल्कीन होता तो एसिड मिलेगा, और ब्रांच्ड अल्कीन होगा तो पहले कीटोन मिलेगा, और कीटोन ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट होगा. ओके, so tertiary alcohol do not undergo oxidation, they undergo dehydration to form alkene. ठीक है शादाब, ये देख लो प्रीवियस स्लाइड. पीसीसी और पीडीसी का फुल फॉर्म याद रखना है, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पीरिडीनियम डाइक्रोमेट. ओके, और ये दोनों यूज करना है अल्डिहाइड के वक्त. अगर अल्डिहाइड बनाना है, कीटोन में हम नहीं यूज करते हैं. इज इट क्लियर? ओके, तो ये हो गया अल्डिहाइड और कीटोन का फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन. हाँ, tertiary alcohol do not undergo oxidation because it gives alkene by elimination. ये नोट करके लिख के रखो, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, वहां पे 4 अलग अलग अल्कोहल दिए होंगे और पूछा होगा विच ऑफ दिस फॉलोइंग अल्कोहल डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज. तो अगर वो टर्शरी अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा. और यहाँ तो क्वेश्चन आता है विच ऑफ दिस अल्कोहल विल नॉट गिव अल्डिहाइड्स और कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन, तो आंसर आएगा टर्शरी अल्कोहल. ओके, so write down this note, tertiary alcohol do not undergo oxidation because it gives alkene by elimination. अब ये जो यहाँ पे रिएक्शन लिखा रहा हूँ, हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल एल्यूमिनियम टर्ड ब्यूट ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन होकर कीटोन देते हैं. नाउ दिस इज कॉल्ड ओपन एयर और ऑक्सीडेशन. ये खाली नीट जेई वाले ही लिखेंगे, एचएससी में नहीं है ये रिएक्शन. सो सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विथ aluminium tert butoxide gives ketone. This reaction is known as open air oxidation. Open air oxidation. खाली नीट जेई वाले स्टूडेंट्स ही ये लिखो, एचएससी में नहीं आएगा ये. Okay, we'll stop here today. Again, tomorrow we'll continue with methods of preparations of aldehyde and ketone.